तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है यहाँ पे। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उससे काफ़ी इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। ओवर द पीरियड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं और रीडिंग कम्प्रीहेंशन का देख रहे हैं हम लोग कंस्टेंट रहा हुआ है। मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरा मैथ में 44 मार्क्स है, राइट? तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने बेसिक्स पे काम किया। ठीक है, पहले आपको बेसिक्स पे बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो फिर आप मतलब ट्रिक समझ रहे हो तो मतलब वो रट्टा मार रहे हो। रट्टा कभी काम आएगा, कभी काम नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब जो तिक्रम होते हैं वो कभी काम नहीं आते हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहा है कि 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस पे थोड़ा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपके पास अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। If you've been in Civils Daily's webinars before, my name is Rohit. I usually host UPSC, IAS rankers, and some of the guest faculties and our core teachers on the webinars. This is our first ever CSAT webinar since the history of Civils Daily. And we started 2016, 2017, 2016. The core aim of this webinar is because we've been talking with all the IAS rankers जो इस साल जिन्होंने रैंक निकाली थी, and they've said that CSAT over years has become slightly difficult. It is slightly hitting the tangent of CAT and GMAT papers, and it's not an easy trivial game to crack. Even though CSAT का पेपर हमको बस qualify ही करना होता है, but it demands much more sincere and much more concentrated efforts than just preparing for the last 15 to 20 or maximum 30 days and just getting by it. And this we've seen especially last year. So Gaurav sir, who's with us and who's holding the CSAT under Civils Daily umbrella, उनसे request ये थी मेरी कि he's already cleared CAT. He's been a student of MBA at MDI Gurgaon. He's coached a lot of people in CAT and GMAT training. तो मेरा उनसे सिर्फ दो एम थे. One was if you can tell me comparing CAT and GMAT and how CSAT में themes have evolved over time. जब से CSAT introduce हुआ था, how difficult or easy is it still to prepare for CSAT? And second, there are two ways to solve any question. One is the harder way and the linear by the bookish method. And there are some tricks which if you can practice for a good amount of time before your actual CSAT paper, you'll be able to solve the paper much, much more quicker and with much more confidence, right? So with these two things in mind, I welcome Gaurav. Gaurav sir, please give a very quick introduction and फिर आप एक बार एक session का state बांध देना कि क्या करोगे, and then let's carry through the PPT. We'll have 30 minutes, maximum 40 minutes of Gaurav sir speaking, and then we will open the floor to everyone asking questions. जिन जिन को सवाल पूछने वो चैट में लिख देना. आई विल स्टार्ट सिलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फिर सर के साथ आई वॉइस इट. ओवर टू यू गौरव सर. थैंक्स फॉर कमिंग इन. Thank you, Rohit sir, for introduction, and thank you everyone for joining for this webinar. Just as Rohit sir mentioned, so this is my introduction. I did MBA from MDI Gurgaon, and I have scored quite good percentile in CAT, JET, and other aptitude-based exams, which are mainly for MBA entrance. Apart from that, if you talk about finance, I am also CFA level 2 and FRM charter holder. Apart from that, I'm also motivational speaker and I have given Josh Talk, which has close to 1 million views. Coming to my journey, I wasn't academically that well. To give an example, I had only 44 marks in class 12 exam, and that was also in CBSE board. From coming there, after graduating, I became serious in life, gave my all for the preparation of CAT and other similar exams, and I scored good percentile in CAT, which is 99.87 percentile. So whatever strategies I developed with the help of mentors I have met. Apart from that, starting from the scratch, I developed this strategy. So I know how to focus on basics and how to efficiently manage your timeline and planning for this competitive examination preparation. After that, I started sharing and mentoring other candidates who are preparing for CAT and other exams, and I got good response and I started doing it over a period of time. So coming to the paper, so most of you might have been aware about this, so I will keep this informative short. So this is qualifying in nature, but a lot of people fall in that pit. Like they think it is qualifying and they take it too easy. कि हमारा तो हो जाएगा, क्वालिफाइंग ही तो है, हम तो कर लेंगे. और कुछ लोग होता है कि हाँ, ये पेपर क्वालिफाइंग है तो इस पे हम टाइम दे देते हैं कि ये हमारा लटके ना. तो दोनों चीज यहाँ पे होती है.
कुछ लोग होता है कि काफी कैजुअली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसके ऑलरेडी काफी कैट एंड अदर एग्जाम्स में अच्छी परसेंटाइल आई थी, उसने 2 बार मेंस भी लिखा था एंड स्टेट पीसीएस भी उसने क्लियर किया हुआ है। ही टुक सी सेट कैजुअली एंड इस साल उसका सी सेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। वही चीज है कि आपको बेसिक से आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हमारे बोलते हैं ना, मैथ प्रैक्टिस की चीज है, सेम चीज वर्बल भी है। वर्बल में भी आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, आप इसको ग्रांटेड ले लोगे ना कि मैंने ऑलरेडी आईआईटी से किया हुआ है या आईआईएम से मैं आ रहा हूँ, मैं अपने आप कर लूंगा, या फिर मैंने ऑलरेडी इतना मैथ पढ़ा हुआ है, हो जाएगा। रियलिटी चेक काफी जरूरी है। रियलिटी चेक आपको कैसे मिलेगा? लास्ट ईयर का पेपर आपने अगर नहीं देखा हुआ है पूरा पेपर, तो आपने उठा लिया, देख लिया कि हाँ मेरा 50-60% आ रहा है, तो मैं गुड इनफ जोन में हूँ। लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैजुअली बिल्कुल मत लीजिए। आप इसको सिंसियरली आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। और इस पे आपको क्या करना है कि प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही चैप्टर उठा के आप दिन भर पढ़ रहे हैं ना, उससे मतलब नहीं पड़ता है। आपको ये है कि आपको टाइम जो है इफिशिएंटली आपको यूज करना है। यूपीएससी के एग्जाम में बहुत कुछ कवर अप करना है, तो आप जो प्लानिंग हो ना वो अच्छे से रहेगा, तो आपका जो टाइम है ना वो बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कोर्स है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड अगर आता है, तो आप उसमें काफी टाइम बचा सकते हो। अब कमिंग टू द मोर इंफॉर्मेटिव्स, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, मोस्टली आपको पता होगा, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ओ, अभी हम लोग आते हैं ओवर द पीरियड कैसे कैसे सेक्शनल वेटेज चेंज हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है यहाँ पे। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उससे काफी इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। ओवर द पीरियड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन का देख रहे हैं हम लोग कंस्टेंट रहा हुआ है। तो आपके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमको बनानी पड़ेगी। कमिंग टू द क्वांट सिलेबस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं इनको शॉर्ट में रख रहा हूँ, जिनके आपको मतलब क्या कहते हैं बेसिक सबके पता होने चाहिए। शॉर्टकट काम आएगा लेकिन तब आएगा जब आपको बेसिक्स पता है। जब वही है ना कि मतलब शॉर्टकट, जैसे शुरू में अर्जुन गए हैं तो उनको तो धनुष सिखाया गया ना कि धनुष पकड़ते कैसे हैं। शुरू में ही तो ब्रह्मास्त्र नहीं मिल गया, तो ब्रह्मास्त्र को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए ना, आपको कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपको केवल शॉर्टकट पे फोकस कीजिएगा ना, तो काफी ज्यादा डिजास्टर्स आपके लिए रहेगा। तो आप ये करना है कि जो भी टॉपिक्स हमारे पास सिलेबस में है, उनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, तो टाइम यहाँ पे देखिए, ओवर द टाइम जो वेटेज है ना काफी ज्यादा वेरी कर रहा है। देखिए अभी देखिए नंबर सिस्टम, 9 क्वेश्चन आए थे 2019 में, अभी रिसेंट में 22 आए हुए हैं। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के 5-6 के अराउंड रह रहे हैं क्वेश्चन। ज्योमेट्री के इजी क्वेश्चन आते हैं थोड़े, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। और रेशियो एंड परसेंटेज का देखिए यहाँ पे काफी अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर से उधर जा रहा है, हो सकता है इधर से पीएनसी में प्रोबेबिलिटी में आ जाए, हो सकता है पीएनसी से ये ज्योमेट्री में चला जाए। तो वेरिएशंस काफी है यहाँ पे ओवर द टॉपिक्स। तो आपको हर एक टॉपिक का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, जिसपे हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि आपको क्वालिफाइंग है तो आपके पास लिमिटेड टाइम में आपको क्लियर करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है उसकी डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपके पास सीसेट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन ईस्ट, देन वेस्ट एंड देन साउथ। अब स्टार्टिंग से कहाँ पहुंचा ये सिंपली बताना है। तो यहाँ पे देखिए काफी मतलब मैनुअल कैलकुलेशन है, काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है, जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर इस बार कंफ्यूज होते हैं तो एक तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं डायरेक्शन का। उसके अलावा भी चाहें तो आप जब भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं ना, तो फिर आप अपने घर का सीन याद कर लीजिए कि हमारा घर का नॉर्थ साइड में गेट है या इस साइड में गेट है, उसके राइट में लेफ्ट में क्या है, वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो। तो सिंपल अगर बात करें तो ऊपर का साइड इन जनरल कंपास में क्या होता है, नॉर्थ लेके चलते हैं, अपोजिट साइड साउथ हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बस केवल फॉलो करते जाना है, और उसके बाद फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है कम।
तो आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल आंख बंद करके, आंख नहीं बंद करना है, दिमाग बंद करके बस एक एक स्टेप बस फॉलो करना है और आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन फिर अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा तो उसमें क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लाइंब 4 more steps to reach exactly the middle step, how many step does the ladder have। ठीक है, ये ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप पे है, 4 स्टेप और चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, 4 स्टेप और चढ़ा तो जाहिर सी बात है +4 कर दिया हमने, फिफ्थ पे आ गया। फिफ्थ पे आ गया तो मिडिल में है, तो मिडिल में है इसका मतलब इधर भी उतने ही रहेंगे स्टेप्स और नीचे भी उतने ही स्टेप्स रहेंगे। तो 5 पे आ गया तो जाहिर सी बात है 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है लेकिन काफी डुएबल क्वेश्चन है ये। बस आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि हाँ कैलकुलेशन में 2 + 2 4 होता है और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब 2023 में आते हैं। 2023 में देख रहे हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो आपको पता होना चाहिए पहले प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, और उसके बाद फिर ये 3 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग अगर चाहें तो एक हो सकता है कि आप रैंडम प्राइम नंबर ले लिए, लेट्स से 3 ले लिया, रैंडम कंपोजिट नंबर हमने 8 ले लिया और उस पर देख लिया कि हमने क्या क्या केसेस बन रहे हैं। अगर लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब वो केसेस आपने एक एक करके आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ केसेस मतलब एक ही 2 केस में आ रहे होंगे और बाकी सब में नहीं आ रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट। तो वो हर एक केस में जो करेक्ट होगा ना वही ऑप्शंस केवल हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिमिलर डिफिकल्टी लेवल पे है ये पार्ट फॉर एग्जांपल कर लेते थे या इससे इजी का कर लेते थे तो एक क्वेश्चन बन जा रहा था। अब ये 3 पार्ट में हमको सॉल्व करने के बाद एक ही क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर मान लीजिए सिमिलर डिफिकल्टी लेवल भी अगर मानते हैं तो सिमिलर एफर्ट करके आपको 3 क्वेश्चन वहां पे बनते थे, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है। तो काफी ज्यादा ये तो 3 गुना मेहनत हो गई आपके लिए। एंड कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो रैंडम एक एक टॉपिक उठा ले रहे हो, एक एक क्वेश्चन उठा रहे हो रैंडम रैंडम और वहां से आप डिफिकल्टी लेवल दिखा दे रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन उनके लिए भी हमने मतलब एक साइड बाय साइड कंपेरिजन लाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2014 का पेपर है, ये है 2023 का पेपर। यहाँ पे साइड बाय साइड आपको दिख रहा है कि क्या डिफिकल्टी लेवल है और यहाँ पे देख रहे हैं 2014 में क्या डिफिकल्टी लेवल था। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि क्या डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा 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 चेंज करते करते ना अब देख रहे हैं कि 9 साल में काफी ज्यादा चेंज हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन ही देख रहे हैं 5% फायर बुलेट्स एट टारगेट एन इंटरवल ऑफ दिस सेकेंड, नंबर ऑफ टाइम दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए एक बंदा शुरुआत से स्टार्ट किया उसी के साथ बाकी सबने स्टार्ट किया तो ये दोबारा एक ही साथ फायर तब करेंगे जब उनका मल्टीपल मैच होगा, राइट। तो मल्टीपल मैच कब होगा, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड्स का एलसीएम निकालना है और उतने सेकेंड का एलसीएम जो आपको आ रहा है ना उतने टाइम पे ये रिपीट होते जा रहा है। अब ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया तो 6 और 12 अगर दिया हुआ है तो 6 का कंसीडर करने की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि 12 में ऑलरेडी ये नंबर इंक्लूडेड है। 12 में 3 इंक्लूडेड नहीं है, एक एक्स्ट्रा, तो 9 के चलते एक 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, 36 हो गया। और 36 में ऑलरेडी 4 इंक्लूडेड है बट 8 इंक्लूडेड नहीं तो एक और 2 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो अगर एलसीएम अगर इसका मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो 72 × 7 हो गया। तो इतने सेकेंड में आप मतलब पहला से अभी फायर किए तो 72 × 7 सेकेंड में आप दोबारा मतलब एक साथ सारे बुलेट्स फायर होंगे। अब हमारे पास 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट है और 60 सेकेंड है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपने कर दिया 72 × 7। तो बस आपको पता चल गया कि एचसीएफ करना है तो यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आपको मेथड से करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन ए बॉक्स।
If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to give a rare pair of shoes to wear, what is maximum number of attempts he has to make? इस क्वेश्चन में मैंने देखा था कोचिंग, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस पे की दिया था, जो कि काफी गलत था। तो इसमें देखते हैं 10 पेयर ऑफ रेड है, मतलब पेयर मतलब दो होंगे, एक आपका लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है, ठीक है। तो रेड के 10 है, व्हाइट के देखें 9 है, एंड ब्लैक के आपके पास 8 है। इतने आपको पढ़ने हैं, और इसमें क्या करना है, रेड पेयर ऑफ शूज चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट में। तो आप क्या चाहोगे कि रेड आपके पास ना आए, तभी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट पे लोगे। तो सबसे पहले आपने व्हाइट एंड ब्लैक के ले लिए। तो व्हाइट एंड ब्लैक में अगर आपको लेना है तो 9 + 8 70 शूज है, लेकिन 70 शूज के अलावा पेयर बना हुआ है, तो 70 × 2 34 हो गए, ठीक है। अब बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड काफी जगह पे आंसर की जाए तो उसमें क्या गलत किया था उन्होंने, 34 हो गए, तो आप आपको दो रेट चूज करना ही पड़ेगा। तो 34 + 2 36 उन्होंने कर दिया था, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि ये भी तो है 10 आपके पास इसमें लेफ्ट वाले होंगे और 10 आपके पास राइट वाले होंगे। तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, तो हो तो सकता है आपको मैक्सिमम रखना है, तो आप क्या करोगे, अगर लेफ्ट आपने पहला चूज कर लिया इसमें, तो 10 के 10 आपने लेफ्ट ही चूज कर लिया। फिर 11th में जब आपको क्लियर होगा कि हमारे पास दो रेड आ गए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा था, एचसीएफ निकालना था। यहाँ पे आपको कितने हाई लेवल पे थोड़ा सोचना पड़ गया। तो यहाँ पे भी हो सकते हैं कुछ इजी क्वेश्चन बन जाए, गिवन आपको ट्रिक पता हो। ट्रिक पता हो मतलब तभी जब पता काम करेगा जब आपको बेसिक्स भी क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 100। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन आपने बेसिक किया हुआ है एंड थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो ये काफी डुएबल है। तो देखिए रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय 100, तो ऐसे नॉर्मल देखिए तो 85 को 87 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 89 को, फिर 91 को, फिर 95 को, 96 को, जिसमें काफी अच्छा खासा 3-4 मिनट का टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस काफी रहेंगे, ठीक है। अब लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन अपना मतलब वो कॉमन सेंस लगा रहे हैं, कॉमन सेंस लगाना है, तो हमने देखा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में देखा सारे 1 डिजिट वाले हैं, 1 डिजिट वाले हैं, तो कुछ कैच होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और लास्ट के 2 डिजिट भी देखने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख रहा है कि सिर्फ एक ही डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लास्ट डिजिट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा हमारे पास 5 है, 5 से किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वो 5 होगा या तो 0 होगा। 5 कब होगा, जब हम लोग उसको और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 × 1, 5 × 3 ऐसा रहेगा, तो 5 आएगा यूनिट डिजिट पे। लेकिन एक भी अगर इवन नंबर आ गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 यूनिट डिजिट वाली। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 का भी मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है, तो जाहिर सी बात है लास्ट डिजिट आपकी 0 होनी है। तो ऐसे ऐसे सिंपल सा बस एक हमने मेथड यूज किया, जहां से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि आपके पास काफी टाइम सेविंग हो जाएगा, गिवन कि हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने टेकल किए हुए हैं, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, सबसे पहले उसको हमको निपटाना है। तो ये हमारे पास ओवर द 2 पीरियड हमने एक स्टेट बाय स्टेट हमने सीधे स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में जो भी क्वांट के क्वेश्चन है उनका कंपेरिजन हमने देख लिया। अब टॉपिक वाइज भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है पहला वाला, दूसरा वाला है आपके पास नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्टी लेवल जो था ना, अभी की तुलना में काफी इजी था, ठीक है। आर एंड ऐसा डिफरेंट इंटीजर बोथ डिविजिबल 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इतना क्वांटिटी है, और ये 1000 ये पर डे में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें 5% अनफिट है, मतलब 5% नहीं आपका जा रहा है, तो 950 आपका फिट होगा। कैलकुलेशन पे आएंगे धीरे धीरे, किसी किसी के लिए बहुत इजी लग सकता है, किसी किसी के लिए बाद में लग सकता है। तो हमारे पास जो भी होगा क्लासेस होंगी, तो क्लासेस में आपको दिखेगा कि हमारे पास कैसे कैसे हो रहा है। कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे मतलब किसी डिफरेंट ऑलरेडी आपने टैकल किया हुआ है तो आपके लिए इजी हो सकता है, एंड जिसने नहीं किया हुआ है उसके लिए हार्ड हो सकता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 5% आपने 100% से माइनस कर लिया या 1 से माइनस कर लिया, तो आपके पास 950 आ गया। तो 950 आपका प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, और इन 19,000 टोटल हो रहा है, तो 19,000 डिवाइडेड बाई 950 करना है, डायरेक्ट आपको आंसर आ गया विच इज 20। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे।
अब देखते हैं 2023 में 3 डिजिट नंबर, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट सारे हैं, और ये दिया हुआ है इक्वेशन, और उसके बाद फिर पूछ रहा है क्या है वैल्यू। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या पैटर्न हो रहा है, और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2023 के और नंबर सिस्टम का बात करते हैं। digit 3 digit number such a ratio of number to the sum of its digit is least. What is difference between digit at the 100 place and digit at the unit place? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देखते हैं, ऑलरेडी देखते हैं डेफिनेटली इवन डेफिनेटली ऑड। तो आपके पास नंबर प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन आ गया। अभी ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, दो चॉइसेस आपके पास हैं सिलेक्ट करने के लिए, और 5 क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज, तो इसमें दिया हुआ है कि जो भी आपके पास सिलेक्शंस आ रहे हैं ना, सारे मतलब यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो टू कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चन इन आइडेंटिकल सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल किसी ने फॉल्स 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 पांचों कर दिए ना, तो कोई और कैंडिडेट ये नहीं कर सकता। तो हर एक क्वेश्चन के लिए दो दो चॉइसेस हो गए। आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो 2 to the power 5 चॉइसेस विच इज 32। तो 32 डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देख रहे हैं, तो ये हमने पेयर ऑफ शूज का देखा ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सिंगल रन में, चौके में और छक्के मिला के 25 रन बन रहे हैं। तो अगर इक्वेशन हम लोग बनाते हैं तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। मान लीजिए एक्स आपके पास सिंगल है, 4y आपके चौके से जो रन आ रहे हैं वो टोटल है, और 6z जाहिर सी बात है छक्का जो लग रहा है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस शुड बी इक्वल टू 25, और इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। देखिए ये हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4 लेटर है, 4 इनवेलप है, और उसके बाद फिर गौरव यहाँ। सर, हाँ जी। एक मिनट पॉज लेते हैं। आई होप एवरीवन इज एबल टू फॉलो, क्योंकि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस वेबिनार इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि CSAT इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी लेफ्ट फॉर द लास्ट मंथ। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड, एंड इसलिए 2023 के एग्जांपल्स को कंपेयर किए जा रहे हैं 2016, 2014 और 2020 के एग्जांपल राइट नाउ। आप बताओ कि हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर CSAT ऑलरेडी, गॉन थ्रू वन राउंड ऑफ, कमेंट्स में लिख के बता दो किसने कितना कितना सिलेबस खत्म कर रखा है, नंबर सिस्टम या कौन कौन से पोर्शंस किसने एक बार यू गॉन थ्रू देम, या आपने लोगों ने भी प्रीलिम्स के लास्ट मंथ के लिए छोड़ रखा है। मतलब इट वुड बी गुड टू नो कि लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी CSAT के लिए। प्लीज शेयर ऑन द कमेंट्स। मीनवाइल देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो काफी, so Gaurav, I mean, I'll just pause you, right, so that we know the mood of the room also, because I don't know कितने beginners हैं, कितने science students हैं, कितने great person is doing CSAT 2 hours every day, right? So YouTube पे ना otherwise बहुत सारे free videos available हैं if you just want to know the theory of it, right? But 2022 और 23 में क्या jump आया है वो ये है कि if you're not solving these questions and इस difficulty level के questions in a dedicated manner, then you would not know किस एरिया में फोकस ज्यादा करना है LR DI रीडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में ना, क्योंकि यू हैव टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ हियर, बट यू माइट नॉट नो कौन से एरिया में बाउंसर आ जाए उस साल क्वेश्चन पेपर जो 2024 में दे रहे हैं। एंड सो व्हाट यू माइट डू, यू माइट जस्ट बी प्रिपेयरिंग ओनली फॉर वन सब्जेक्ट वेरी हैवी एंड उसी में से ही यूपीएससी ने पेल दिया, राइट? सो द आइडिया इज दैट गौरव सर हैज अ कोर्स जिसके बारे में हम टुवर्ड्स द एंड बताना चाह रहे थे, बट बिकॉज ही स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड आई डोंट नो कि आप सब लोग बिगिनर्स हो या आपको समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू फॉलो और नॉट। These are all sequentially done. So the reason why this course is the most practical course is because we'll be solving through the PYQs across the year. And while we solve the PYQs, we'll be teaching the theory and you will know the gradual uptick in the level of paper over time. And the reason why Gaurav sir is the best person to take this course, is because he also has taught CAT and GMAT students, right? So not only the comparison factor is there, but already this is up his sleeve. This is something he's already been doing. UPSC में only last year people have started taking it seriously. So आप लोगों ने I'm sure अपने seniors से बात की होगी, अपने peers से बात की होगी, and they would have said CSAT is simple. I mean, you just have to prepare for 15-20 days, except the last year rankers. We have our in-house rankers, Pawan Datta, Aditya Pandey, so many guys, Uma rank 3.
And all of them have said ki CSAT is not something which is easy or trivial. You guys really have to prepare hard for it. So, continue, Gaurav sir, with the course. In the meanwhile, we have planned a very thorough step-by-step program for CSAT only, and this is the right time to start with. जिसको मैथ फोबिया है, वो भी जो आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, वो भी मोस्टली आप ही लोगों को देखते हुए किया हुआ है. जो मैथ्स के प्रो स्टूडेंट्स हैं, we will be having tough problems and tough challenges with you in every classroom. So not at all to bother. I would request my team to drop in the link for the course. The pricing for this webinar attendees is discounted by $1,000. So it's specially at somewhere around 4,000. Out of this, out of market price around 5,000. But this is something which we've done only for the webinar attendees. Sir, एक देवयानी का बहुत interesting question था, which let me just scroll up, which was something around कि अगर कुछ CSAT for dummies की books आती थी, एक series of books like Python for dummies, C++ for dummies, right? If there are only few things, few areas which I have to focus on and like keep getting better at them, what should those areas be for maths? तो जैसे हमने बताया कि हम लोग स्टार्ट जो भी करेंगे एकदम बेसिक से करेंगे, कि मैं ये प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि आपको ये आता है. तो जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरा मैथ में 44 मार्क्स है, राइट. तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने बेसिक्स पे काम किया. ठीक है, पहले आपको बेसिक्स पे बिल्डअप करना पड़ेगा. जैसे आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो फिर आप मतलब ट्रिक समझ रहे हो तो मतलब वो रट्टा मार रहे हो. रट्टा कभी काम आएगा, कभी काम नहीं आएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब जो तिक्रम होते हैं वो कभी काम नहीं आते हैं. आपने रट्टा मार के इतना सारा बैगेज रखा हुआ है और एग्जाम में जा रहे हैं तो आप एकदम ब्लैंक हो जा रहे हैं कि ये क्या आ गया. तो ये चीज होती है. तो वही चीज है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. हर एक चैप्टर जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बेसिक्स आप कर रहे हो. उसके अलावा जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसके लिए भी हमको स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन का. जहां से आप क्या कर पा रहे हो कि लेट से हम 27 के 27 नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है कि जिसका रीडिंग स्पीड स्लो है, तो वो हो सकता है 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन 10 आप करेक्टली करो. उसको फिर बाकी बचा आप क्वांट में दो, रीजनिंग में दो. तो वही हर एक पर्सन का अलग अलग स्ट्रेंथ जोन होगा, वीकनेस जोन रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, कट ऑफ को इजिली क्लियर कैसे कर सकते हो. Okay. And especially जो beginners हैं, what have you seen the areas where they do really good at and the areas which are really tough for them, मतलब from your experience तो of the पहले बात paper? है कि बिगनर देख के घबरा जाते हैं. वो घबराना बिल्कुल नहीं है. जो भी स्टार्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किए हैं ना. तो आपका अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट अभी डिफाइंड नहीं है. एंड पॉइंट आपके मेहनत पे डिफाइंड होगा. तो आप मेहनत करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा. लेकिन वहीं आप ये स्ट्रे करते रहोगे, फिर आपने किसी से रैंडम ज्ञान ले लिया, उसने बोला हाँ ये कर ले ये कर ले, हो जाएगा. फिर वो करते करते फिर आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा. तो वही हो जाएगा कि आपको यू नीड टू लाइक कीप इट कंसिस्टेंट, कि हम जो भी फॉलो कर रहे हैं थ्योरी या प्रैक्टिकल में, जो भी अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज लाइक well structured, and it is mentored by someone who has already done that, or already like mentored people who have prepared for these competitive exams. Else you Okay. are not able to see the end picture. And if you are going and giving energy or like कुछ भी रैंडम पकड़ के आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू लाइक एफिशिएंटली आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अपने टाइम को स्पेशली. Okay, fine. So let's do bilingual for the next 10 minutes. Okay, one of the interesting questions from Jafar was, how can one handle CSAT if he does not have a science background, and if the basics are not clear? I mean, in the class 11, 12th, math hasn't been given that much of importance. What I would add something to this question, what would be the kind of issues that person has to build first, basics that person has to build first, and then only he can progress further? Okay, most likely 10th तक you have exposure to mathematics, right? So Yeah. the mathematics, the basics are at least related to class 10 maths. After Okay. that, there is variation. So you need to brush up on those class 10 level mathematics, and you don't need to go and like pick up NCERT book. So we have competitive examination books. Those are important because there is no stepwise marking here like CBSE, right? So these are objective papers, and there are variations which are completely different than CBSE paper. So you need to focus on these competitive examination books and courses
This will help you to have a structured way and approach for the preparation. Okay, fair enough. People who've joined us very recently, I think Gaurav sir, you can continue with your PPT. You can share the deck again. Okay, What just we have wanted done to till know now कि is, sorry. no, I'm just going to give a context to a lot of people have joined recently as an audience. So what we have done till now is we have compared 2023 paper against CSAT 2016 to 2020 papers, and we've seen how in a different segment, number theory, percentages, probability, the standard of questions have increased. You know, the questions difficulty level has increased. Okay, and so we were talking through the number system, and then we introduced that we are taking a limited time course which we have launched only for this webinar students at a much discounted price, and we will be taking help of PYQs on which to build the course, and then we'll be giving a lot of practice problems, and we'll be solving them live in Zoom sessions with Gaurav sir across about 2 months, right? The course would be about 2 months, but we'll be there till the prelims ends for you. If beginners have any question, please do drop in, on the comment section, and we'll pick up the question. Then from there, Gaurav sir can talk more about the exam. In the meanwhile, Gaurav sir, if you can share the deck Okay, sure. again. And also I wanted to know how is it going for everyone? Are they able to understand the solution या फिर मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बता दिया? Right. So that's what I asked. Guys, just on a yes or no, were you able to follow the problem solving which sir was doing on the whiteboard, or do you want him to go slow, or you want him to solve more problems, less problems, give more of a theory? Was no issues, right? You continue it. I mean, they were following you हाँ, तो easily. यहाँ पे देखिए घबराने की बात नहीं है। अभी हम लोग काफी सारे जो क्वेश्चन का दिखा रहे हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से है कि दिखाने के लिए डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज हो रहा है। तो वंस वी स्टार्ट विद द क्लासेस वी विल गो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, उसको आप फिर जो जितने भी डिफिकल्ट और हॉरर लेवल के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना, उन सबको एक एक करके हम लोग टैकल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लास्ट ईयर का हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, Perfect, तो perfect. आपको वेल प्रिपेयर्ड करा देंगे कि सी सेट के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ मतलब आप वेरिएशंस के ऊपर रहो। जैसे आप बॉर्डर लाइन पे रहोगे ना, तो फिर आपको लगा रहेगा कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप मान लीजिए आप 33% आपका पासिंग है और आपका 50 के राउंड आ रहा है, तो फिर आप वेल एवर दैट जोन, राइट। तो वही चीज है कि हमारा फोकस यही रहेगा कि आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्जिन रहे जो कि आपके कट ऑफ के ऊपर में आपका रेगुलरली आए। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द पीपीटी अगेन। Yeah. Please. इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it's visible. ठीक है, तो अगेन हमने जैसे अभी बॉल्स वाले क्वेश्चन देखे थे, तो सिमिलर क्वेश्चन अगेन आपका पीएनसी 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, पीएनसी का काफी ज्यादा मतलब चेंज हो गया। नंबर सिस्टम में ज्यादा आपको नहीं पता चल रहा हुआ, तो वो भी यहाँ पे पीएनसी का तो आप डिफिकल्टी लेवल देख ही पा रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें भी देखिए कि जैसे पजल दे दिया तो पजल करने तो कुछ भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे हो सकते हैं वेरिएशंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें बोलता है ना लॉजिकल रीजनिंग में कुछ सिलेबस है ही नहीं, तो ये एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन हो गया। और ये पजल हो गया तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पजल कर सकते हो। उसमें भी कुछ बोलेंगे कि हाँ एनालिटिकल पजल अलग होता है। नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। लॉजिकल डिडक्शन हो गया। डेटा सफिशिएंसी ऑलरेडी हमने बात किया था कि अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जो डेटा सफिशिएंसी हो गया एक टाइप से मतलब लॉजिकल में भी आ जाता है, क्वांट में भी आ जाता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वांट की नॉलेज होना जरूरी है। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग एंड जो भी टॉपिक्स हैं आपके पास। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2016 का अरेंजमेंट का क्वेश्चन या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल टॉपिक्स एक टॉपिक पे आ सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन भी लगा दिया और सिटिंग अरेंजमेंट भी साथ में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 5% इन ए ग्रुप PQRST, person has one doctor, one lawyer and one artist. PNS are unmarried students. He is a man married to one of the group members. Q is the brother of P and neither doctor nor artist, and R is not a doctor. तो यहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। डॉक्टर, प्रोफेशन, लॉयर, आर्टिस्ट और 2 स्टूडेंट हैं और 5 लोग हैं। तो इनका अलग अलग आपको केसेस बनाते आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो बना के आपने सॉल्व कर दिया तो फिर आपके 5 क्वेश्चन बन गए।
डू वी हैव टाइम, वी कैन लाइक सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम? तो इससे I think we can take a poll. Do you want this question to be solved, or is it, matlab, you just want the broad strokes theory to be given? Everyone can do a yes or no. Do you want this question to be solved here? ज्यादा बेसिक लग रहा हो तो छोड़ सकते हो। If you think this question is very basic, then don't solve it. Can we solve the 2023 one? I think people are more interested to solve the difficult ones. That would be, I think, interesting. यहाँ Easy पे भी ones, so आपके anyone can solve. 5 लोग थे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं, अगेन 5 लोग हैं, और यहाँ पे रिलेशन आपको निकालना है। व्हाट इज ई रिलेशन टू बी? तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इन 4 स्टेटमेंट को आपको 4 अलग अलग वे में कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेम डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं सेम डिफिकल्टी लेवल है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर वहाँ पे प्रोफेशन भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। डायरेक्ट तो है नहीं कि इसको जोड़ के बता दीजिए कि क्या रिलेशनशिप है। तो ये जितने ऑप्शन एंड 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वो ऑफसेट कर रहे हैं ये जो आपके पास प्रोफेशन दिया हुआ था उसको। तो सेम डिफिकल्टी लेवल अगेन आप देख रहे हैं कि मतलब आपका डिफिकल्टी लेवल 5 गुना हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। एक ही क्वेश्चन बना रहे थे, आपके पास 5 नंबर आ जा रहे थे, यहाँ पे एक ही नंबर आएगा। I think this is very, very important, yeah. To, matlab, honestly, I've also, so by the way, I've also written these exams, CAT, and I am an IIT graduate. But this way of looking at questions, key, you might think it's the same thing as 2016, but there you were solving 5 questions, and there, even if you spend 5 minutes on this question, you would only get an answer to one question. And so, because you have to qualify for this exam, you should just optimize your, attempt, which is like super important. Matlab, great. ठीक है, तो आप लोग को डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास जो भी है ना, मतलब यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप हो रहा है तो हम लोग ट्री बनाते हैं जनरली, ठीक है? तो जैसे हमारे पास एक जनरेशन ले लिया, तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे एक हमारा फ्रेंड आ गया, मान लीजिए कोई नाम दिया हुआ है, तो वो नाम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर वाली जनरेशन आएगी तो ऐसे उसके ऊपर रखेंगे, और उसके नीचे वाला जैसे उसका सन या डॉटर दिया रहेगा उसके नीचे में रहेगा। तो ये थ्योरी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मेल एंड फीमेल को भी शो करने के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लोग स्क्वायर एंड ट्रायंगल यूज करते हैं, और मेरे लिए तो मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस यूज करता हूँ। मैं ये ज्यादा यूज करता हूँ। प्लस मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मेन के लिए ले लिया, निगेटिव मैंने फीमेल के लिए ले लिया, ठीक है? और जो आपके पास ब्लड रिलेशन है उसको आपने ऊपर ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया। जैसे इसका ए मान लीजिए बी का फादर है, ठीक है? तो ए ऊपर है और बी का फादर है, एंड बी इज मेल, तो बी के लिए प्लस हो गया, एंड ए फादर है तो इसके लिए प्लस हो गया। फिर अगर मान लीजिए सी एंड ए की मैरिज हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मैं दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड क्यों दिखा? डबल बॉन्ड केमिस्ट्री वाले लोग ज्यादा को रिलेट कर पा रहे होंगे। डबल मैंने इसलिए दिखाया कि अगर मान लीजिए सेम पीढ़ी में है ना, तो भाई बहन भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। तो भाई बहन के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि सिंगल लाइन यूज किया हुआ है, जैसे डी का मैंने कर दिया। तो ये मुझे पता चल जा रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ डी, बट डी का भी हमको रिलेशनशिप नहीं पता, अनलेस हमको पता चल जाए प्लस या माइनस है, ठीक है? तो सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो दे आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी इन फैमिली, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू बी? तो अब हमको देखिए 4 अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले 1 2 3 का हम लोग करेंगे, फिर 1 3 4 का करेंगे। फिर इन दोनों को करने के बाद सोल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर इस पे जाएंगे, फिर इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा कि हम लोग चारों यूज करके भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग 1 का कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए 1 2 3 हम लोग यूज कर रहे हैं। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है? तो इसमें मुझे ये नहीं पता है कि हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। तो हमने अभी इनका कुछ नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे डबल लाइन हमने कर दिया कि ये दोनों मैरिड हैं। डी इज फादर ऑफ सी, इसका हमको पता नहीं चल रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे तो हमारे पास न डी है न सी है, तो डी इज फादर ऑफ सी, तो डी का तो जेंडर हमको रिवील हो गया। तो डी इसके सी के ऊपर वाले जनरेशन में हो गया। ए इज डी सन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो आप कर सकते हो कि सी और ई में सिबलिंग का रिलेशनशिप हो जाएगा, लेकिन सी का आपके पास जेंडर नहीं पता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, तो डी का
ई इज डी सन, राइट? तो डी का सन ई हो गया। एंड अगर ऊपर वाला सेंटेंस अगर हम लोग यूज कर पाते हैं ना, तो हमको पता चल जाएगा कि डी इज फादर। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी केस में जैसे यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेटमेंट यही है, तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में हम लोग डी इज फादर या मेल मेंबर ये एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखना है कि जैसे पहले वाले के लिए कर रहे हैं, तो चौथा वाला स्टेटमेंट तो आपके लिए आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, सॉरी पहले वाले ऑप्शन में आते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिला के आपको बताना है। तो ए बी मैरिड है, और डी और ई का रिलेशनशिप यहाँ पे आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है ई का बी से रिलेशनशिप। तो ए बी से रिलेशनशिप ना तो आपका 2 से ही आ रहा है, ना तो 3 से ही आ रहा है, राइट? ए बी तो दोनों स्टेटमेंट में नहीं है। तो जाहिर सी बात पता चल गई कि ये स्टेटमेंट से हमको कुछ नहीं पता चलने वाला। ये सबको क्लियर स्टेटमेंट 1? तो I हमने replies yes or no. This is clear. Yeah, you need more explanation. तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। Clear. Awesome. I think Clear? representationally, it's a good question to solve for. Can we like go next and see more variety of questions? ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग आपको स्टेटमेंट के यूज करने पड़ेंगे। अब देखते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन में। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहा है कि 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस पे थोड़ा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपके पास अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास जो एसेज हो सकते हैं वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है उस वाले टॉपिक से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा एडिटोरियल पढ़ते रहिए, एटलीस्ट एक आधा घंटा या 1 घंटा आप मॉर्निंग में दीजिए। तो वो चीज़ काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। और आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी इसमें रहते हैं। एक सबसे सिंपल होता है मेन आइडिया क्वेश्चन। जैसे कोई भी पैसेज लिखा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ ऑथर कन्वे करना चाह रहा होगा, कुछ आइडिया होगा या फिर कुछ उसका अपना लॉजिक होगा या फिर कुछ उसका कन्विक्शन होगा कि हाँ, जैसे कोई नेता ही भाषण देने आता है तो यही आता है ना कि ये कहानी है, ये कहानी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम उसको वोट दो। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। ऑथर कुछ लिखने आ रहा है तो वो उस कुछ कहानी पूरा बता दिया, फिर उसका कुछ ना कुछ एजेंडा होगा ही तभी लिखा है, राइट? तो ये मेन आइडिया क्वेश्चन ये होते हैं। एजम्पशन बेस्ड क्या होते हैं कि वो हम लोग आगे वेरिएशन एग्जांपल के साथ देखेंगे, और उसके बाद फिर वर्बल रीजनिंग होती है। तो अब आते हैं हम एग्जांपल पे। तो जो मेन आइडिया क्वेश्चन होता है ना, तो उसके काफी अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। डायरेक्टली पूछ देगा कि क्या बता दो क्या मेन आइडिया है, या फिर ये ऐसे भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जैसे ये 2023 का पेपर का है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय ऑथर ऑफ द पैसेज। जो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रैशनल होगा, जिसके लिए ये पैसेज लिखा होगा, इसना पूरा कहानी लिखा होगा। तो किस कहानी के लिए या किस मैसेज को कन्वे करने के लिए उसने ये पूरा कहानी या पैसेज लिखा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसेज के लिए अलग अलग अप्रोचेस लोग बताते हैं। मेरा है सिंपल रखो, क्वेश्चन वर्सन कुछ मत पढ़ो, पहले पैसेज पढ़ो। पैसेज पढ़ लिया, और इसमें भी आपके पास मान लीजिए जिनके स्पेशली जिनके लिए डिफिकल्टी लेवल पे काफी ज्यादा इशू होता है कि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं वर्बल सेक्शन में, उनके लिए ये रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से टॉपिक के साथ आप ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल हो, और कौन कौन से क्वेश्चन टाइप के साथ कंफर्टेबल हो, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना चालू करो। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया कि फार्मर्स एंड इकोनॉमिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं पढ़ना चालू कर दिया। या फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैंने लगा कि हाँ मेरे साथ मतलब क्या कहते हैं ये टॉपिक मुझे समझ में आता है। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ आपके लिए कीवर्ड आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स हमारे पास हेल्पफुल हो रहा है इस पैसेज को अटेम्प्ट करो या ना करो, ये सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हर एक ऑप्शन पे जाते हैं। और उसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी लास्ट के लिए रखना है कि आप इनको टिक कर लो कि हाँ लास्ट में इस क्वेश्चन पे हमको वापस आना है। और उसके बाद फिर आप एक जो आपको बेस्ट बेट लगता है वो ले सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करना है इसको। तो अगर दो में आपके पास देखिए कैलकुलेटेड रिस्क है और मान लीजिए आप श्योर नहीं हो ना, तब उस केस में ये स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना है। एंड जनरली आपके पास अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो भी उस केस में ये स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना है। बहुत बार ये बैकफायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने दो रिजेक्ट कर दिया है ना, तो आप इनिशियल लेवल पे हो ना,
तो उस वाले में मिस्टेक में ये हो सकता है जो जो आपने रिजेक्ट किए हैं फॉर एग्जांपल, और ये मैं जो रिप्रेजेंटेशन पर्पज से टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दो आपने अब मान लीजिए क्रॉस कर दिया ना, तो शुरू शुरू में क्या हो सकता है कि आपने गलत जजमेंट कर दिया, जो आपका करेक्ट आंसर था उसको ही आपने शुरू में बोल दिया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो आपको जो भी अगर अच्छे से मतलब सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हो जाती तभी ये वाला ट्रिक आपको यूज करना है, नहीं तो बिल्कुल यूज मत करना है कि दो वाले में कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक टिक करने वाला काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने एजम्पशन वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए पैसेज छोटा है, लेकिन ये बोला है मोस्ट रैशनल एजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो ये हो गया कि आपको क्वेश्चन के समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर आपको पैसेज समझ में आ गया तो आप पैसेज के आगे सोच पाओ कि आपका एजम्पशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं पटना से दिल्ली के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरी ट्रेन 10 बजे सुबह में यहाँ पे दिल्ली पहुंच रही है, मुझे ऑफिस जाना है 12 बजे, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, कल सुबह मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, 12 PM पे। तो इसके लिए क्या एजम्पशन हो सकता है? पहला एजम्पशन हो गया कि ट्रेन हमारी लेट नहीं होगी, और दूसरा एजम्पशन ये हो गया कि 2 घंटे में अगर लेट नहीं हो रही है तो 2 घंटे में या थोड़ी बहुत लेट भी हो रही है तो उतने टाइम में मैं ऑफिस पहुंच पा रहा हूँ। तो ये सारे एजम्पशन हो गए, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर अगेन हम लोग चलते हैं वर्बल रीजनिंग पे। तो हाँ जी, कोई कोई पूछ रहे थे क्या? तो यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास सिमिलर चीज है कि आपके पास पूरा कहानी दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आप फिर आपको एक रिकमेंडेशन आपको सजेस्ट करना है। तो ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप जाके भी आपको मतलब बहुत बार क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे, लेकिन जो फ्रेमवर्क है ना वो पैसेज से ही डिटरमाइंड होगा। तो ये हमारे वर्बल के मोस्ट ऑफन आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। एंड कॉमन इशूज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि काफी लोग हो गया कि नेग्लिजेंट हो जाते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर ही तो है कर लेंगे, या फिर सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे अगर नहीं हो पाया तो फिर एक साल आपको रिपीट करना पड़ गया। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि शुरू से आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, और बाकी पेपर की तरह भी इसके लिए भी डेडिकेटेड स्ट्रेटजी बना के रखो। दूसरा अप्रोच हमने जो डिस्कस किया था कि इनएफिशिएंट अप्रोच काफी लोग का हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा दी, हाँ इस बार नंबर सिस्टम बहुत आया, नंबर सिस्टम पूरा छान डालेंगे, ठीक है। और उसका फिर ब्लाइंडली वो लग गए, और उसका फिर पेपर आया तो नंबर सिस्टम जितना ज्यादा था थोड़ा सा कम हो गया, बाकी थोड़ा बढ़ गया। और या फिर दूसरा ही अप्रोच मतलब नंबर सिस्टम में उन्होंने पूरा लाया लेकिन बाकी सब में मतलब अच्छा नहीं आया, तो इसलिए कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। तो Gaurav sir, काफी can you सारे give a कॉमन। timeline? Can you give a sense of a timeline? How many sessions will we be having? How when कितने में quant cover होगा? How many sessions will we take to cover RC and so and so forth? श्योर श्योर, वो हम लोग आते हैं उस पर। और दूसरी बात, सबसे लास्ट बात है कि आप रेडी फॉर सरप्राइजेस। एप्टीट्यूड एग्जाम सरप्राइजेस के लिए काफी नोन होते हैं, जैसे कैट का पेपर होता है उसमें काफी हो सकता है कि आप में तो क्या कहते हैं 50 मार्क्स लाए हैं, 50 मार्क्स में ही आपके मतलब 99 परसेंटाइल मार्क्स आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो परसेंटाइल से लेना देना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और सेम चीज पे हो सकता है 50 मार्क्स पे आपका 78 परसेंटाइल आए, तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से परसेंटाइल वहां पे चेंज कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मतलब जितने भी आपके पास टॉपिक्स दिए हैं ना सबके बेसिक्स आपको आने चाहिए, और उसके बेसिक्स पे फिर आपको आगे का प्लान करोगे। तो अभी के लिए हम लोग जैसे रोहित सर बता रहे हैं तो उस पे आते हैं। तो अभी के लिए हमने उससे पहले just a second. Some of the questions were कि there are a lot of students who are involved in ultimate assessment program with mentorship. So whoever is already in, kind of enrolled with Civils Daily's mentorship program, just drop a message here with a yes. I'll see, what we can do. Just drop a yes if you are a part of our programs already. Anushka, Shobita. Okay, quite a few. Oh, Devyani, you're part of the program. Okay, interesting. Yes, Gaurav sir, please continue. तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे पास 3 सेक्शन यहाँ पे हो जा रहे हैं। क्वांट हो गया, तो हम लोग आई थिंक उस पे चलते हैं जो सेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन हो गया, ठीक है। तो अभी इनिशियली हमने 40 आवर्स का सेशन प्लान किया हुआ है, और ये आवर्स हमारी तरफ से फिक्स नहीं है
कि 40 आवर्स में फॉर एग्जांपल आपको ये तीनों चीज हमने कवर किया, लेकिन जहां पे भी आपको लगा कि हाँ यहाँ पे आपके पास ज्यादा नीड आ रही है, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा और ज्यादा नीड आ रही है, तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा बहुत इसको फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कुछ एडिशनल सेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी हमारे पास कुछ ग्रुप सेशंस भी होंगे, जो कि सब कुछ कंबाइन करके हम लोग सारे बैचेस को कंबाइन करके प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें तो सपोर्ट में आपके पास रहेंगी, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब हाँ एक स्टैंडर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका पेपर क्लियर हो जाए, ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो कमिंग टू द डिफरेंट टॉपिक्स एंड सेक्शंस, तो हम लोग बात करते हैं, तो हमने पैरेलली तीनों के चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 40 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो अबाउट 18 आवर्स विल गो फॉर क्वांट। ठीक है, तो इसमें क्वांट के हम लोग जैसे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियोज, वो सारे हम लोग 18 आवर्स में लगभग कवर करेंगे। ठीक है, फिर 12 आवर्स विल गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे ब्लड रिलेशन थे, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। एंड 10 आवर्स विल गो फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में तो बहुत लोग बोलेंगे कि थ्योरी तो एक ही चीज है, लेकिन थ्योरी के अलावा भी आपके पास एक फीडबैक लूप होना चाहिए कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका रीजनिंग क्या है और ऑथर का रीजनिंग क्या है। तो इसमें जैसे पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर दिया रहेगा, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर भी कंप्लीट करते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप पता कर पाओ कि आपने गलती की तो किस लिए किया, आपने क्या सोचा था जो कि आपने मिस आउट किया, कि ऑथर का क्या लॉजिक हो सकता है। तो उसके लिए हमने डिस्कशन के लिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन को भी हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स रखे हैं। और उसके अलावा Perfect. बाकी हम लोग, हाँ, आपके रिजल्ट के ओरिएंटेड ये सब कुछ हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जिसको हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे। Perfect. So the 57 people who are still on the webinar till late, and congrats for staying for the next 50 minutes. Those of you who were part of our UAP or other programs, I will quickly get back with the team and we will give you a much decently discounted link for this course. This is a separate course because for the first time, I was really doing something dedicatedly on CSAT, and we got the best faculty out there, and we got him from the CAT and GMAT place. ठीक है, तो UPSC CSAT यार आप देख लेना, no one has any command out there on YouTube, maybe a handful of you, and they're exorbitantly priced. Other people who want to have a one-on-one chat with Gaurav sir, please drop in your numbers on the chat abhi. And then what we'll do is अगले कुछ दिनों में ना 25 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बट अगले कुछ दिनों में we will try to have a 10 to 15 minutes one-on-one call with you before you take the course. बुक्स रिकमेंडेड फॉर यूपीएससी प्रीलिम सीसैट वो सब आपको बता दी जाएगी। कोई स्टैंडर्ड बुक्स इतनी कोई सीसैट की यूपीएससी वाली है नहीं यहाँ पे। सर खुद से कोर्स बना रहे हैं, ही स्टडिंग द पीवाईक्यू एंड ही विल बी बोरोइंग फ्रॉम द कैट जीमैट बुक्स। तो अगर आपने किसी ने भी कैट एग्जाम दिया तो अरुण शर्मा की बुक बहुत फेमस हुआ करती थी, बैक इन माय एग्जाम्स, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव written books over it. तो fundamentals वही होंगे, we'll be actually building on top of it. So drop in your phone numbers, whoever wants to have a chat. 2025 की strategy बहुत same रहेगी 2024 की strategy से, and the paper is only going to go difficult. By the way, I don't know if you have friends in the services right now, but data interpretation and data analytics is such a big deal in Labasna right now. We have our rankers Aditya Pandey, Pawan Datta, and they have classes on Python, they have classes on SQL. Gaurav, you won't believe it, like so much statistics they've been taught because almost everything is turning digital, no, in India. So I had the webinar with Uma like 3 weeks back, and Uma said that sir abhi matlab 6 baje hi khatam hua hai sab kuch, and 7 baje webinar tha. We had a 7 to 8 webinar, and she said they're kind of making us so much data first and data aware. And I think that is the reason why CSAT is also becoming challenging, because in the next generation or the next, the turn of the history, data is going to be everything. It's already everything, but public service is also picking it up. So drop in your number, guys. We'll be then aligning calls with Gaurav sir over the next 2-3 days. ये आप ही को मिल पाएगी, कुछ ही लोगों को मिल पाएंगी, उसके बाद तो this course will go. Shobita, so all your mentors will be providing you a discounted link. This is only for my UAP and SMASH students. Your respective mentors will be giving you a discounted link. Keep it within the community, please. Keep it within your core group of students only. जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं
ये बहुत tricky situation होती है यार. We already have discounted this course. Is there a voice in the? You're audible Sorry, perfectly. I'm audible perfectly, right? Okay. Sorry, there's my dog and he pressed the keyboard key. Sorry. Sorry, guys. Right, guys, this is a heavily discounted course already. This course is outside for $5,000 for this webinar attendees और वो भी जो अभी तक जो 50 बच्चे अभी कुछ बच्चे हैं. For you guys, it is at 4,000. For the UAP and my Smashman students, we'll discount it further. The link will be given on Telegram to you separately. But drop in the number in case you have any other question. How to attempt CSAT question paper? Should we first complete the math? Vivo, I'm sure this is your phone name. Do not worry at all about it, yeah. For the 40 hours, just trust, sir. You will get all the recorded classes, but it's best that you attend a live Zoom session because there'll be active problem solving. Okay? वो भी PYQ से relevant. So we will be following the pattern of UPSC CSAT. We will be drawing upon the knowledge of CAT and GMAT. So nothing can surprise you much for 24 exams. And we'll make sure that you go for it. Okay. I'm dropping the course link again. Cool. Anyone has any other specific strategy question? यहाँ पे कोई ड्रॉप करो. कोई बिल्कुल नॉन साइंस स्टूडेंट हो जिसको कुछ बहुत रैंडम फियर हो which you want addressed here. Yeah, are there any kids from engineering colleges here? Trust me, I was speaking with a ranker. I hope you saw my dog. I was speaking with a ranker. Let me just get him here. And he said that, maths pe over-index karna is also not good. So he said that, hedge yourself among RCs and the reasoning because math is also getting difficult and difficult, even for the IIT and IIM graduates. वही Any other question, guys? हाँ, गौरव? तो वही बोल रहा हूँ कि अलग अलग स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग वर्कआउट कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि क्वांट को पहले स्टार्ट करना है, वर्बल को अलग स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ फिक्स स्ट्रेटजी है. आप लोग ट्राई आउट करिएगा. तो हम लोग के पास जो भी आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो PYQ बेस्ड रहेंगे एंड PYQs की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरी. ठीक है. Okay, Neha has asked an important question. Course basics से start करेंगे या directly we'll go for the PYQs? Like we will be covering basics also, right? जी. तो Obviously, बेसिक Neha, we'll cover the नहीं basics. PYQ का. We'll cover the basics and then just to always seek the relevance, right? Because enough theory बहुत boring हो जाता है. तो theory करके the example question will derive from the previous year questions only. ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम एकदम कैट और GMAT बेस्ड हो गए. 2024 will show us कि how tough it will become. But we will make sure that we get the best of the previous year questions and we will get the best, the hinting questions of CAT. The course will be bilingual, money, yes. Gaurav sir, the course will be bilingual, right? We will have students from South India joining as well. Devyani says, I have a huge enjoyed in competition and reasoning and I'm good at, can I reach a point? Yes, I think that is why your question was the CSAT for dummies, right? So I think Devyani's question is what most of your strategy is going to be, right? All the aspirants who are here, that you will study the basics across these three pillars, but then you will pick and choose key your qualifying marks should come from, which two core pillars. But as we suggested, right, do not over-index on one pillar alone because, UPSC might any day change the game and your over-indexed one pillar might become so devilishly difficult that you're not able to solve for it. Cool. Everyone else who wants a connect with Gaurav sir, please do drop in your number here. As the approach to the paper is very personalized, that someone is good at comprehensive while other can't, how will the course be personalized? Supriya, so this course is different from the UAP Foundation and Smash Mains program that you are a part, if you're a part of Civil JD. Those courses are very, very personalized. There we sit with you and we try to understand if you're an art student or a tech student, wherever you are. And then we accordingly give you a timetable to follow. And then every week we call you or every other week we call you and we say, okay, ye hua to ye karo. This course, so that is different. Those are full year courses. This CSAT course is a very simple, bullet short course for you. So you will be given basics of all. And then you will have those extra 5 sessions with Gaurav sir, wherein you can ask personal questions and some guidance can be given in person. Okay, but otherwise it's a simple, straight in and out course for everyone. Simran asks, only PYQs are enough to boost up preparation for CSAT?
PYQs are really great to anchor your preparation, because otherwise, like I said, these topics are similar for CAT and for GMAT also. So you don't have to solve for very difficult ones, but it will anchor your preparation. So, Simran, we will use PYQ to anchor, tell you the difficulty level, but we'll also give you a certain CAT GMAT level of difficult questions just to stretch you a little bit. Overall, trust, be assured, course will cover the basics first and then go on. Perfect. I think great. We have an amazing audience and notes नहीं सब कुछ मिलेगा नोट्स भी मिलेंगे जो सर स्लाइड्स बनाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे और आप सब जो कोर्स का पार्ट होगे उनका एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप होगा so that you can keep chatting and you can discuss problems even outside the class hours. Cool. Any other questions? Do any one of you want to go live and ask a question directly here with Gaurav sir? Just raise your hands and I'll unmute you and I'll unmute both the video and audio. किसी को कोई सवाल पूछना है अभी on this call? Is there any entitlements for aspirants? Entitlements का मतलब क्या होता है सिमरन? Cool guys, I think this is it, Gaurav. We have gotten a lot of numbers, about 30, 40 students have dropped their numbers and we'll align calls of them with you. Okay. Thanks for coming in and giving this quick webinar. इस webinar की PPT पाने के लिए ना, I think just drop this webinar PPT to us. We'll send it to everyone. Okay, so that they will know, the question you selected and they can, even after a while, they can, see the difficulty level, how it's changing. बेटर ये रहेगा गाइज एक वीडियो हमने सर का लॉन्च किया था यूट्यूब पे उस पे कमेंट कर दो एंड देन वील फाइंड यू एंड वील मैसेज यू द पीपीटी कूल ग्रेट मैं एक और बार बस लिंक ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे इन केस पीपल वांट टू जॉइन एंड दे हैव मिस्ड द लिंक बट अदरवाइज यू आर ऑल गुड थैंक यू गौरव Thank you. we'll see you soon the course starts on 25th bye